Assalam-o-Alaikum. A warm welcome to all of you at our channel TechStorming. So friends, in this video we are going to have a CSS challenge to make a calculator using HTML and CSS. Friends, we have many different ways to make a calculator, to design a calculator by using HTML and CSS. Like we can create a simple calculator using a form, using buttons and many other ways. But as yesterday we have discussed about the grid properties in CSS, so with the help of grid properties, we are going to design this simple calculator. Getting? So let's go towards our Visual Studio Code and see how we can make this simple calculator. Here is our Visual Code Studio. Let's make a new file with the name gridcal.html. To make the basic boilerplate, press exclamatory marks and enter. Here is our basic page structure. As we are making a calculator using grid property, so I am giving it a title grid calculator. The very first we are going to create a main div. I am going to give it a class and the name of this class is main. Okay. Then inside this main div, okay, before making further divs, let's make a CSS file. I am giving it the name stylesheet.css. Now let's link this file with the HTML file, and you know that it will be linked in the head tag. You will use a tag link, then rel, and you will write here style sheet, then use an attribute href and write your file name. Our file name is stylesheet.css. Okay. Now let's go towards our CSS file. So for selecting the class, we will write here the name main. Now I want to give it a height that is 800 pixels. You can give it according to your need, and width again 800. Okay. हम बाद में अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं हाइट विड्थ को. Okay, but right now I am giving it 800 pixel height and 800 pixel width. Now let's give it a border that is 2 pixel solid black. Now let's see how it is going to appear on screen. And here we go. ठीक है, हमारा मेन डिव क्रिएट हो गया. मैं चाह रही हूँ जरा सेंटर में आ जाए. So what will I do? I will use another property, margin. Margin वैसे तो हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, but right now I am using auto. When I will use the margin auto, the box will go in the center. ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ही आपके स्क्रीन के सेंटर में अपेयर हो. ठीक है. Now again go to our HTML file. Here we are going to create another div. क्योंकि सबसे पहले आपके कैलकुलेटर पे क्या होता है, स्क्रीन अपीयर होती है, डिस्प्ले स्क्रीन आ रही होती है. So for that we are creating another div and I am giving it an ID display. Okay, save this. Let's see how it is appearing.
अच्छा, क्योंकि अभी हमने हाइट और विड्थ असाइन नहीं की इसे, तो ये अभी आपके पास अपीयर नहीं रही, ना आपने हाइट दी है, ना विड्थ दी है, ना ही आपने कोई बॉर्डर दिया है, इसलिए आपके पास ये यहाँ पे विजिबल नहीं है। अच्छा, चलिए थोड़े से और डिस्क क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इन सब पे एक साथ CSS फाइल्स यूज करेंगे। एक कैलकुलेटर ओपन करते हैं ताकि उस कैलकुलेटर को देखते हुए हम अपना कैलकुलेटर बनाएं। हियर इट इज। कितने बटन हैं? 4। अच्छा, अब इसके लिए 2 वेज हैं, या तो आप डिव्स क्रिएट करते जाएं या फिर आप बटन्स क्रिएट करते जाएं। ठीक है, पहले हम डिव्स क्रिएट कर देते हैं। div, okay, AC is written there. Now again another div. अच्छा, अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे हमारे पास कुछ साइंस आ रहे हैं, कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स आ रहे हैं, कुछ एंटिटीज आ रही हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे? यू विल सिंपली गो टू दी गूगल and you will write here entities in HTML. Okay, then open a file. कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें आप, यहाँ से आप एंटिटीज सर्च करोगे एंड यू विल यूज इट। क्योंकि हमें जो साइंस चाहिए वो यूज होते हैं मैथ्स में, तो सिंपली प्रेस मैथ्स एंड हियर वी गो। आपके पास प्लस का साइन ये रहा, आप यहाँ से इसका HTML एंटिटी कॉपी करो, सिंपली Ctrl+C, go there and paste it। फिर हमारे पास क्या था? बैक स्लैश था। उसके लिए अब हम एक बैक स्लैश ढूंढ लेते हैं। will be backslash, here it is। फिर डिवीजन स्लैशेस एंड कहते हैं। सिंपली HTML कोड को कॉपी कर देते हैं एंड paste it in your div and paste it in your div। Now the third sign was minus। Again for minus, search it। Yeah, ठीक है, HTML एंटिटी कॉपी करिए और पेस्ट कर दें। ओके, चलिए थर्ड। अच्छा, थर्ड डिव में हमारे पास क्या था? थर्ड बटन में हमारे पास क्या था? एक परसेंट का साइन था। अगेन you will use the entity, search here the percent sign, here it is। Simply copy this and paste it here। Okay, and in fourth we have the division sign। Again this is a reserved word, यहाँ से हम division entity लेंगे। Here it is, HTML entity copy करें division sign के लिए and paste here। Okay, save this। अच्छा, हमारे divs तो क्रिएट हो गए, अब थोड़ा सा HTML फाइल, अपनी CSS फाइल की तरफ चलते हैं। इसकी फर्दर डिजाइनिंग कर देते हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह का लुक आ रहा है आपके पास। क्योंकि हमें ग्रिड की हेल्प से बनाना है कैलकुलेटर, सो यू विल यूज हियर डिस्प्ले ग्रिड। ठीक है, जब आप डिस्प्ले ग्रिड करते हो तो आपको नेक्स्ट आपको बताना होता है कि भाई कितने कॉलम्स चाहिए, कितने ग्रिड्स चाहिए आपको। तो यूज हियर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। अब इट डिपेंड्स ऑन यू, एज वी हैव डिस्कस्ड येस्टरडे। आप अपनी मर्जी से इसे पिक्सेल्स में साइज बता सकते हैं कि कितने साइज के कॉलम्स होने चाहिए आपके, और यू कैन गिव इट ऑटो। ठीक है, जितने कॉलम्स आपको चाहिए आप उतनी बार ऑटो लिखोगे। आपके पास कितने कॉलम्स थे? लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स द कैलकुलेटर। 1 2 3 and 4। So you will write here auto 4 times, 3 and the 4th time। Okay, चलें अब हम पहले मेन डिव्स की थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं। कॉलम्स आपके पास होना शुरू हो गए, तो हम आ जाते हैं कि भाई मेन
जो हमने क्लास बनाई है मेन, इसमें जितने भी डिव्स हैं अब हम इन पे कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, कुछ सीएसएस अप्लाई करते हैं। इन्हें हम पैडिंग असाइन कर देते हैं 50 पिक्सल एंड font size 60 pixel. You can give it according to your need. And border 2 pixel solid black. Save this. Again go to your screen. Refresh this. See? इस तरह से आपके पास शो हो रहा है। फर्स्ट हमारा क्यों इस तरह ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि अभी हमने डिस्प्ले यूज किया है, ठीक है। और ऐसे क्यों आ रहा है, अभी हम इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, ग्रिड प्रॉपर्टीज, तो ये सेट हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए अब हम अपने डिस्प्ले पे थोड़ा वर्क कर लेते हैं। हमने आईडी असाइन की थी इस डिफ को डिस्प्ले, ठीक है। वी विल यूज हियर ग्रिड कॉलम स्टार्ट। कल हम इस प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो अगर आपको रिकॉल करना हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। कहाँ से स्टार्ट हो भाई, फर्स्ट से स्टार्ट हो एंड ग्रिड कॉलम एंड। अच्छा, जितने कॉलम्स आपको ज्वाइन करने, कंबाइन करने, जितने कॉलम्स को मिला के आपको एक ग्रिड फॉर्म करना है, आप उसका नेक्स्ट लिखते हो, नेक्स्ट नंबर लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं चाह रही हूँ, लेट मी शो यू हियर, मैं चाह रही हूँ कि ये जो मेरे पास 4 कॉलम्स हैं इन सबको मैं ज्वाइन करूँ तो मेरा एक ग्रिड फॉर्म हो, फर्स्ट डिस्प्ले वाला, ठीक है। तो 4 है, 1 2 3 4। मैंने कहा कि जो भी जितने ग्रिड्स आपको ज्वाइन करने हैं आप उसके नेक्स्ट एक नंबर बाद वाला नंबर बताएंगे। तो हमें 4 ग्रिड्स ज्वाइन करने हैं, तो हम नंबर बताएंगे 5, ठीक है। You will write here grid column and 5. Save this, refresh the page. See, this is your display. ठीक है, अभी हम और डिव्स क्रिएट करेंगे तो ये सेट होता जाएगा, डोंट वरी। ओके, ना अगेन पहले हम अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। हियर इट इज। चलिए लेट्स मेक द सेकंड रो। ये हमारी डिस्प्ले स्क्रीन बन गई, फर्स्ट रो डिजाइन कर लिया हमने, अब हम सेकंड रो पे चलते हैं। फॉर दिस go to your CSS HTML file, again make the divs, okay. What was written? 9 I guess. क्या था, 7 था 9 था, let's see 7, okay 7। इस div को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 7 8 9 और लास्ट में एक सैम्पल था, कौन सा सैम्पल था, लेट्स सी multiplication, okay। Again this is a reserved entity, so what will you do, simply go to Google, multiplication sign, ठीक है। यहाँ से HTML entity कॉपी करिए, multiplication sign की, and paste it here, ठीक है। save this and see, ठीक, आपकी सेकंड रो भी बना। लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, 4 5 6। लेट्स स्टार्ट, इसे ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट टू सेव आवर टाइम। सो इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 4 देन 5 देन 6। यहाँ पे सैम्पल कौन सा है, लेट्स सी, एंड देन चेंज, वी विल चेंज इट माइनस, ठीक है। तो आप गूगल पे जाएं, सिंपली माइनस के लिए एंटिटी देखें, कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर, save this
सी तो थर्ड ड्रॉ appears here. आपकी थर्ड ड्रॉ भी प्रिपेयर होगी. Now let's go towards the fourth one. अब क्या है हमारे पास 1 2 and 3. Let's start. Again इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. Control V. 1 2 and 3. यहाँ पे हमारे पास एक सिंबल था. What was it? प्लस साइन. ठीक है. Again go to the file. वेबसाइट पे जाएं. HTML एंटिटी कॉपी करें प्लस के लिए and paste it here. ठीक है. Save this. See, हमारी next row भी ready है. Now the last row. This one. Again इसे हम कॉपी कर लेते हैं. Control V. Here it was 0. अच्छा यहाँ पे आपके पास एक एंटिटी है. ठीक है. इसके लिए हम यहाँ पे ढूंढेंगे कोई एंटिटी. For the point, here it is. Simply copy the HTML code and paste it here. And here again you have a reserved keywords, that is equal sign, to find out the entity for it. I guess starting with our equal sign. Yes, here it is. Simply copy this, go to the Visual Studio Code and paste it here. Save this and see how it's appearing. See? अच्छा ये क्यों खाली है? क्योंकि आपका जीरो का साइन जो यहाँ देखें जीरो बटन इज टू ग्रिड्स के इक्वल है. अब ये कैसे होगा? लेट्स गो टुवर्ड्स द CSS फाइल एंड यूज सम मोर ग्रिड प्रॉपर्टी. अब हम कुछ और ग्रिड प्रॉपर्टीज यूज करेंगे. ओके. फर्स्ट हम अपने इस जीरो, जिस डिफ पे हमने जीरो लिखा है इसे हम एक आइडिया साइन कर देते हैं क्योंकि इस पे हमें अभी वर्किंग करनी है. तो हम इसे एक आइडिया साइन कर रहे हैं जीरो. ठीक है. सेव दिस, गो टू योर CSS फाइल, ID सेलेक्टर यूज करेंगे, जीरो दे. अच्छा अब हम चाह रहे हैं कि दो रॉस की इक्वल. अगेन ये कॉलम स्टार्ट एंड कॉलम एंड यूज करेंगे हम. ठीक है. ग्रिड कॉलम स्टार्ट. कहाँ से स्टार्ट हो गई? फोर्थ से स्टार्ट. ठीक है. कहाँ तक एंड हो? टू कॉलम्स के इक्वल होना चाहिए. तो टू के इक्वल होना चाहिए तो आप किस पे जाओगे? नेक्स्ट नंबर क्या दोगे आप? 3 दोगे. यहाँ पे आप लिखोगे ग्रिड कॉलम एंड and you will write here 3. Save this. See, ये सेट हो गया. ये डबल लाइन क्यों आ रही है? क्योंकि हमारी जो हाइट थी वो हमने 800 पिक्सल दी थी, जबकि ये साइज हमारा 800 पिक्सल से ज्यादा हो रहा है. इट्स ओके. हम यहाँ से हाइट चेंज कर देते हैं. इस हाइट को दे देते हैं हम 100%. ठीक है. सेव दिस. See, it is set now. ओके. आपका जीरो भी ठीक हो गया. अब हम चाह रहे हैं ये जो हमने नंबर्स लिखे हैं ये आ जाए सेंटर में. तो हम क्या करेंगे? हमने जो यहाँ पे मेन अपना कंटेनर बनाया था हम इस पे दे देते हैं अलाइन टेक्स्ट सेंटर. ठीक है. टेक्स्ट अलाइन हम सेंटर कर देंगे. टेक्स्ट अलाइन सेंटर. सेव दिस. ठीक है. आपके नंबर्स और साइंस जो हैं वो सेंटर में आ गए. अब जरा हम अपना कैलकुलेटर देख लेते हैं. अच्छा अब इसमें देखें हर बटन के बाद गैप्स आ रहे हैं. तो इसके लिए अब आप क्या करोगे? अगेन गो टू योर CSS फाइल,
यही जो आपका मेन कंटेनर है, इसमें आप ग्रिड की एक और वैल्यू असाइन करोगे, सॉरी, दैट इज ग्रिड कॉलम गैप। ठीक है, कॉलम के दरमियान गैप देना है, तो यू विल राइट ग्रिड कॉलम गैप। कितना गैप चाहिए? आई एम राइटिंग हियर 10 पिक्सल्स। सेव दिस, रिफ्रेश इट। कॉलम्स के दरमियान कॉलम्स के दरमियान गैप आ गया। इसी तरह हमें रॉस के दरमियान भी गैप चाहिए। अगेन गो टू योर CSS फाइल, यहाँ पे आप लिख दोगे ग्रिड रॉ गैप। मैं इसे ही कॉपी पेस्ट करके एडिटिंग कर देती हूँ, पेस्ट। इस कॉलम की जगह आप लिख दोगे ड्रॉ। सेव दिस, रिफ्रेश इट। सी, आपके रॉ और कॉलम दोनों के दरमियान स्पेस आ गया। अब हमें क्या करना है? नाउ वी हैव टू गिव इट कलर्स। अब हमें कलर्स दें, अलग अलग कलर्स हुए हैं इस पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अच्छा, फर्स्ट रॉ में देखो AC प्लस माइनस साइन एंड ये परसेंटेज के साइन पे सेम कलर है। तो बजाय इसके कि हम बार बार इन तीनों को अलग अलग कलर्स दें, हम क्या करेंगे? वी विल सिंपली गिव देम, जो डिव्स हैं इनके, हम इनको सेम क्लास असाइन कर देंगे। ठीक है, आईडी असाइन नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज आईडी इज यूनिक। ओके, so we will use here class। हम अपने इस div को class असाइन कर देते हैं। div class फर्स्ट रो है, तो इसे हम लिख देते हैं रो 1। ठीक है, यही क्लास हम अपने बाकी दोनों बटन्स को भी असाइन कर देते हैं। कॉपी दिस, पेस्ट हियर एंड पेस्ट हियर। ठीक है, सेव दिस। CSS फाइल पे चलते हैं एंड क्लास सेलेक्टर के थ्रू क्या था? रो 1। इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या है? लाइट ग्रे, आई गेस। लाइट दिस कलर। ठीक है, सेव दिस। सी, तीनों पे कलर है। ओके, चलें दोबारा अपने कैलकुलेटर को देखते हैं ना। बाकी जो हमारे कॉलम जो है, हमारी लास्ट कॉलम जो फोर्थ कॉलम है, इन सब पे सेम कलर है, तो हम इसे एक सेम क्लास असाइन कर देते हैं। ठीक है, इन्हें तो हम इन सबको एक सेम क्लास असाइन कर देंगे और बाकी फिर जितने भी हमारे पास डिव्स बचेंगे उन सबको सेम क्लास दे देंगे। ठीक है, लेट्स गो। लास्ट में हमारे पास है डिव, इसे हम क्लास असाइन कर देते हैं क्लास। लास्ट कॉलम है, कॉलम 4 है, इसे हम कर देते हैं कॉल 4। ठीक है, कॉल 4। कॉपी दिस एंड लास्ट में हमारे पास आई गेस ये एंटिटीज हैं जस्ट, है ना? तो इन एंटिटीज पे हम सेम क्लास असाइन कर रहे हैं। ठीक है, Ctrl+S। हमने क्लास असाइन की है कॉल 4, यहाँ लिखते हैं कॉल 4। इसे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ऑरेंज है, कुछ ऑरेंज सा शेड है। ठीक है, आप कलर पैलेट से, गूगल पे कलर पैलेट से भी आप एग्जैक्ट कलर सेलेक्ट कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। ठीक है, ये तो हमारा पहले वाला दिस वन। ठीक है, ये आ गया आपके पास कलर। अब बाकी जितने आपके पास डिव्स बचे हैं इन पे आपको सेम कलर असाइन करना है। लेट्स गो अगेन टुवर्ड्स द HTML फाइल। इन सबको हम सेम क्लास असाइन कर देते हैं। Class, because this is a number, so I'm writing here num. Okay, copy this,
जल्दी जल्दी से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। अच्छा, 0 पे हमने ऑलरेडी एक आईडी असाइन की हुई है, तो हम इसे क्लास असाइन नहीं कर रहे, हम इसी आईडी पे कलर असाइन कर देंगे। ठीक है, सेव दिस। नाउ गो टू योर स्टाइल शीट। आपने क्लास दी है नाम। ठीक है, इसे बैकग्राउंड कलर असाइन कर देते हैं, ग्रे शेड है कुछ, है ना, हम देते हैं ग्रे या फिर डार्क ग्रे। सेव दिस। सी, अच्छा कलर हमारा थोड़ा चेंज हो गया है, कोई बात नहीं, आप एग्जैक्ट कलर ढूंढ के यू कैन डू इट। अच्छा, अभी हमारे पास इन दोनों पे कलर्स नहीं आए, क्योंकि इस पे हमने आईडी जो दी थी, हम उसी पे जाके बैकग्राउंड कलर असाइन करेंगे, और यहाँ आई थिंक हम क्लास असाइन करना भूल गए। लेट्स गो टुवर्ड्स द एचटीएमएल फाइल एंड सी। यस, यहाँ हमने क्लास असाइन नहीं की। ठीक है, सेव दिस। हम यही कलर 0 पे भी असाइन कर देते हैं। सेव दिस। एक ये ऑरेंज क्यों गया भाई? ओके, वी हैव असाइन दिस कॉल फॉर, दैट्स व्हाई इसे हमें देना था नम। सी, नाउ इट्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि आपको एक ही बार में पूरी स्क्रीन नजर आए। सी, हियर इज आवर कैलकुलेटर। ओके, कलर्स आप अपनी मर्जी से असाइन कर सकते हो। So this is how with the help of grid, display grid property, we can design the calculator. अच्छा, अब जो आपने यहाँ पे divs क्रिएट किए हैं, आप इन divs की जगह पे बटन भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, divs लेने की जगह आप बटन असाइन कर दो, बाकी चीजें ऐसे ही रहेंगी। ठीक है, divs के थ्रू आप कैलकुलेटर बना सकते हो, बटन के थ्रू कैलकुलेटर बना सकते हो, आप फॉर्म के थ्रू कैलकुलेटर बना सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू दैट हाउ यू वांट, but this was just a practice of using display grid property. I hope you enjoyed it and you learned from it. Keep practicing. See you in our next video. Till then, take very good care of yourself and Allah Hafiz.